Welcome to the 7th video on the rhyme of the Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. This video contains lines 123 to 142 which fall in part 2. कवि सैमुअल टेलर कोलरिज द्वारा रचित द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता में आपका स्वागत है। ये 7वीं वीडियो है और इस 7वीं वीडियो में हमने पंक्तियाँ ली हैं 123 से लेकर 142 तक, जो कि मूल कविता में पार्ट 2 में आती हैं। Now let us see the original lines of the poem, beginning line 123. The very deep did rot, O Christ, that ever this should be. Yea, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. About in reel and rout, the death fires danced at night. The water, like a witch's oils, burnt green and blue and white, and some in dreams assured were of the spirit that plagued us so. 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow, and every tongue through utter drought was withered at the root. We could not speak no more than if we had been choked with soot. Ah, well a day, what evil looks had I from old and young. Instead of the cross, the albatross about my neck was hung. Let's see the explanation of these lines. The very deep did rot, O Christ. In the previous video, we have seen that the south wind stopped, the sails dropped, and they are at a standstill stage, like a painted ship on a painted ocean. अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था साउथ विंड चलना बंद हो गई है, जहाज के सेल्स थम गए हैं, इतनी स्थिरता आ गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे महासागर एक चित्र के बराबर है और जहाज भी उसके ऊपर एक पेंटेड जहाज की तरह से है। The very deep did rot, O Christ. The mariner tells the wedding guest that the deep water of the ocean, it started rotting because stagnant water rots. Ancient mariner wedding guest को अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि जहाज क्योंकि स्थिर हो गया था, गति नहीं थी और ठहरा हुआ पानी सड़ता है, तो इसलिए क्योंकि जहाज ठहर गया था
पानी सड़ने लगा था। द वेरी डीप डिड रॉट, ओ क्राइस्ट दैट एवर दिस शुड बी। ही लेमेंट्स दैट वी हैड नेवर एवर इमेजिन्ड दैट वी विल गो थ्रू सच एन एक्सपीरियंस। मैरिनर क्राइस्ट को याद करते हुए कहता है कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम इस तरह की परिस्थिति में फंस जाएंगे। ये slimy things did crawl with legs upon the slimy sea, and he says that in the sea slimy creatures started crawling with legs. Now here we should pay attention to two things. In the previous video I had pointed out that sea to ocean, there was a change without any reference, and it was a very smooth and spontaneous change. Now again we are talking about sea. So if we pay attention, then only then can we note that we have again come to the sea. But here the concept is of a water body. हमने पहले देखा था कि हम सी से ओशन की तरफ आ गए हैं बिल्कुल स्मूथली, और अब हम फिर से सी की तरफ आ गए हैं। तो सी टू ओशन एंड ओशन टू सी, बट दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बेसिकली वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं। एक वाटर बॉडी है और उस वाटर बॉडी में हमारा जहाज अटका हुआ है, ऐसा एंशिएंट मैरिनर वेडिंग गेस्ट को बता रहा है। ये स्लाइमी थिंग्स डिड क्रॉल विद लेग्स upon the slimy sea, about in reel and rout, the death fires danced at night. Now he says that about in reel and rout, the death fires danced at night. Now the scene has been created of a very supernatural surrounding where it is the dead of night and death fires are dancing. And they are dancing in reel and rout in very precarious, very disturbing movements. यहाँ हम देखते हैं कि एंशिएंट मैरिनर ने जो विवरण दिया है उसके थ्रू कोलरिज एक सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि गहन रात्रि में डेथ फायर्स बहुत जोर जोर से लपटें उठ रही हैं और आड़ी तिरछी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। द वॉटर लाइक अ विचेस ऑयल्स बर्न्ट ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट, एंड द वाटर इट बर्न्ट इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर्स लाइक अ विचेस ऑयल्स। ऐसा लगा जैसे जादूगरनी का जो जादू का पॉट होता है जिसमें वो बहुत सारा जादू करती है और उसका तेल जलता है और उस तेल का कलर भी रंग बिरंगा सतरंगा सा होता है। इस तरह का सीन वहां पर हमें देखने को मिला। पानी भी ऐसा लगा जैसे जादूगरनी का जलाया हुआ तेल हो। एंड सम इन ड्रीम्स एश्योर्ड वर ऑफ द स्पिरिट दैट प्लेग्ड अस सो, एंड सम ऑफ आवर co-mariners started feeling that they had some sort of message from the spirit who told them why they are undergoing this suffering. यहाँ पर कुछ मैरिनर्स ये कहते हैं उन्हें सपना आया है और सपने में उन्हें पता चल रहा है कि इनके ऊपर ये विपदा क्यों आई हुई है। 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि the albatross had followed them for 9 vespers, which meant that the distance that the albatross had covered with them was equivalent to 9 fathom. यहाँ पर कुछ नाविक ये बताते हैं कि उन्हें इस तरह का सपना आया है, एक स्पिरिट ने उन्हें बताया है कि वो जो एक होली स्पिरिट,
तुम्हारे साथ चल रहा था। एक आभास इनको होता है कि एक होली स्पिरिट था जो 9 फैदम तक की दूरी कवर करता हुआ हमारे साथ आया था फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो, जो धुंध की और कोहरे की दुनिया से हमारे साथ चलता चला आया था। एंड एवरी टंग थ्रू अटर ड्राउट वॉज विदर्ड एट द रूट। And every tongue through utter drought was withered at the root. This is the extreme situation of thirst. The mariner tells the wedding guest that our tongues were parched with thirst. हमारे कंठ सूखे हुए थे। And our tongues were dry up to their very roots. जड़ तक हमारी जीभ सूख चुकी थी, इतनी ज्यादा प्यास हमें लगी हुई थी। We could not speak no more than if we had been choked with soot, and the type of sensation that we were undergoing was just as if our throats had been choked with soot. ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे कंठ काले धुएं के पाउडर से, कालोच से, या काजल नुमा जो धुआं होता है जो कि बहुत फाइन होता है, बहुत बारीक होता है, जिससे गला एकदम चोक हो जाता है, कंठ रुक जाता है, इस तरह की रुकावट हमारे कंठ में महसूस हुई और हम बात भी नहीं कर पा रहे थे। We were unable to speak to each other. We were unable to utter a single word. Ah, well a day, what evil looks had I from old and young. The mariner tells the wedding guest that all the co-mariners, whether old or young, each one looked at me with evil looks, with cursing looks, with accusing looks. एंशिएंट मैरिनर वेडिंग गेस्ट को बताता है कि जितने भी नाविक थे, चाहे वो बूढ़े थे चाहे जवान थे, वो सब मुझे लांछन भरी दृष्टि से, दोषारोपण करने वाली दृष्टि से देख रहे थे। इंस्टेड ऑफ द क्रॉस, द albatross about my neck was hung, and they were so angry at me. They were so full of sort of revenge for me that out of their anger, to quench their anger, they broke my crossbow and they hung the dead albatross around my neck. मेरे मैरिनर्स, मेरे साथी नाविकों को मुझ पर इतना आक्रोश था कि उन्होंने मेरे क्रॉस को हटा करके, वो जो क्रिश्चियंस क्रॉस पहनते हैं गले में, मेरे उस क्रॉस को हटा करके और मरे हुए एल्बेट्रॉस को मेरे गर्दन में बांध करके टांग दिया। तो इस तरह का गुस्सा उन्होंने मेरे ऊपर निकाला। नाउ लेट अस सी द ग्लॉसरी ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर लाइन्स 123 to 142। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। The very deep did rot, O Christ. The deep was full of stench and foul smell. The poet addresses Christ because of the intense pressure of the situation. गहरे पानी में से बहुत बुरी सड़न व बदबू आ रही है। इस घुटन के प्रभाव से वो व्यथित हो गया है और इस व्यथा से बचने के लिए कवि ने अनायास ईसा मसीह को याद किया है। स्लाइमी, ऑयली, क्रीपी, नॉजिएटिंग, चिपचिपा, दलदला, घिनौना, कीचड़ से लथपथ। क्रॉल, टू क्रीप, स्नीक, ड्रैग। रेंगना, घिसट कर चलना। इन रील एंड राउट, रिवॉल्व क्विकली ऑन one's own axis.
अपनी ही धुरी पर जोर जोर से गोल गोल घूमना। डेथ फायर्स, superstitious flames imagined by Coleridge to create a supernatural effect. मृत्यु सूचक लपटें अनिष्ट का आभास देती हुई लपटें। कोलरिज ने अंधविश्वासी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऐसी काल्पनिक लपटें सोची हैं। Which is oil, greasy water changing color very quickly, which is alien to normal human beings. This imagery has been created for supernatural effect. डायन या चुड़ैल द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले तेल जैसा पानी जो तीव्र गति से अपना रंग बदल रहा था। यह यहां पर इस तरह का कॉन्सेप्ट कोलरिज ने एक अद्भुत इफेक्ट, एक सुपरनैचुरल इफेक्ट लाने के लिए किया है। प्लेग, टू कॉज समबडी अ लॉट ऑफ ट्रबल और डिस्कंफर्ट, किसी के लिए मुसीबतें खड़ी करना। फैदम, अ मेजर ऑफ डेप्थ इक्वल टू 6 मीटर्स, 6 मीटर जितनी गहराई। 9 फैदम डीप, डेप्थ इक्वल टू 9 फैदम, दैट इज 54 मीटर्स, 54 मीटर की गहराई जितना। ड्राउट, फैमिन, स्केर्सिटी, अकाल या सूखा पड़ना। विदर्ड, श्रंकन, वीकेंड, मुरझाए हुए, झड़े हुए। चोक्ड, टू स्टॉप द एयर फ्रॉम रीचिंग द लंग्स एंड डिसेबल ब्रीदिंग, दम का घुटना या श्वास अवरोध। सूट, ब्लैक पाउडर दैट कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड और सिमिलर थिंग्स एंड गेट्स कलेक्टेड इन चिमनीज, जलती चीजों से उत्पन्न कालिक, काजल नुमा काला तत्व। The albatross about my neck was hung. The fellow mariners punished the ancient mariner for shooting the albatross by hanging it round his neck. This has become metaphorical, an accusatory phrase used to describe an unfortunate mistake or mishappening, the burden or repercussion of which you are forced to tolerate, a heavy burden that restricts the progress of a person. साथी नाविकों ने एंशिएंट मैरिनर को एल्बाट्रोस को मारने की सजा दी। उन्होंने मरी हुई चिड़िया उसके गले में लटका दी। अब इस अभिव्यक्ति को एक लोकोक्ति के संदर्भ में यूं समझा जाता है, एक ऐसी त्रुटि जिसका बोझ ढोना ही होगा और दुष्परिणाम बहुत समय तक झेलना पड़ेगा। ऐसी गलती जो अग्रसर होने में रुकावट पैदा करती है। With these lines, we have finished the second part of
द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। यहाँ इस 7वीं वीडियो को पूरा करने के बाद हमने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिया है। वीडियो 1, 2, 3, 4 में हमने पार्ट 1 देखा था। वीडियो 5, 6, 7 में हमने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का पार्ट 2 देखा है। इन द फर्स्ट 4 वीडियोस, वीडियो 1, 2, 3, 4, we have covered part 1 of Rime of the Ancient Mariner. In video 5, 6, 7, we have covered the second part of the Rime of the Ancient Mariner. Thank you. धन्यवाद।